Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we understood what the subject of compiler design is, what does a compiler do, what is the life cycle of a program. Then we also studied the various phases of compiler, and we also understood the relationship between the subject of theory of computation and compiler design. In this session, we will be talking about lexical analysis. More specifically, we'll be talking about how to count the number of tokens, which is a very important question with respect to the GATE exam, with the perspective of the GATE exam, right? So, and also we will study about symbol table manager also in this session. All right. So let's see. Okay. So what is? So we'll understand this phase of lexical analyzer in detail in this session. First of all, we need to understand what are the things that a lexical analyzer do, right? So the first thing it does is it returns all the tokens in the program, right? So it returns all the tokens that are there in the program. So what are the kind of tokens that we have? So sometimes we have identifiers, sometimes we have keywords, operators and constants. We saw in the previous session also, like for example, if I have an expression, say A is equals to B plus C, so the lexical analysis phase will convert it into ID is equals to ID plus ID colon, where these are my operators, ID is my identifier, and semicolon is my delimiter. Alright, so this much we have already discussed, right? So it returns all the kinds of tokens that we have in the program. So some of the kinds of tokens that we have are identifiers are one kind of tokens, and identifiers also can be of multiple types, right? So identifiers can be, so for example, the functions can be identifiers, the variable names can be identifiers, right? The class names can be identifiers, the object names can be identifiers, and so on and so forth, right? So all these things will come into the category of identifiers. All right, and we have also seen what are the keywords, and so the keywords can also be tokens and operators as well as constants, right? ठीक है, तो ये एक है important point. It returns the tokens in the program. It returns all the tokens in the program. It tokenizes the program. ठीक है. Second point is it removes the comments. So whatever comments that you write in the program, they are of no use for the compiler. They are for the human understanding. तो वो सारे के सारे जितने भी comments हैं वो हम इस phase में निकाल देंगे. Then it removes the white spaces. जितने भी extra spaces आपने लगा दिए हैं वो सारे के सारे spaces में निकाल देंगे, because we have already seen C is a free flowing language. आप कहीं पे भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, because lexical analysis phase क्या करेगा, सारे के सारे spaces को निकाल देगा. तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ space लगा रहे हो और कहाँ space नहीं लगा रहे हैं. जैसे Python is not a free flowing language, वहां पर प्रॉपर इंडेंटेशन का बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. इट रिमूव्स ऑल द वाइट स्पेसेस. और जैसे कि मैंने कहा कि हम इस ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होंगे कंपाइलर डिजाइन के, लेकिन मोर स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू द सी कंपाइलर, द जीसीसी कंपाइलर. ऑलराइट, ठीक है. देन इट पॉपुलेट्स द लाइन ऑफ रेफरेंस एंड लाइन ऑफ डिक्लेरेशन इन द सिंबल टेबल. मतलब सिंबल टेबल के अंदर लाइन ऑफ रेफरेंस किसी भी वेरिएबल की, लाइन ऑफ रेफरेंस एंड लाइन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, वो वेरिएबल कहां पे आ रहा है, वो सारी चीजें, वो रेफर कहां हुआ है, वो कहां डिक्लेयर हुआ है, वो सारी की सारी चीजें लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम सिंबल टेबल में पॉपुलेट कर देंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस अकेला ऐसा फेज है जहां पर हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, राइट? So therefore, populating the line of reference and the line of declaration of the variables in the symbol table is also done in this phase. So these are the four major functionalities and of the lexical analysis phase, right? और so अगर हम इसमें और बात करना चाहें तो it returns all the tokens in the program. जैसे मैंने कहा, तो tokens कैसे बनते कैसे हैं? It can be performed using regular expressions. ठीक है. So lexical analyzer का जितना भी काम है that can be performed using regular expressions. lexical analyzer जो है, अगर हम regular expressions के थ्रू अगर हम इसे कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? lexical analyzer को क्या चाहिए? finite automata ही चाहिए. So finite automata is more than sufficient to perform all the functionalities of lexical analysis. एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि अगर आपको
सी के सिमेंटिक्स अगर आपको पता है, सी के सिंटैक्स अगर आपको पता है, तो जो आइडेंटिफायर है मेरा, दैट इज द नेम ऑफ वेरिएबल, लेट्स से द नेम ऑफ द वेरिएबल, उसके लिए क्या रूल्स हैं सी के अंदर? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास आइडेंटिफायर के लिए क्या रूल्स हैं? हमारे पास पहला रूल तो ये कहता है कि भाई, पहला रूल क्या कहता है कि इट शुड स्टार्ट विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर, and then after that you can have letter or underscore or digits, any combination of that. So how I can write the regular expression? The regular expression can be written as L plus U dot L plus U plus D whole star. So this is my regular expression for the given identifiers in the C programming language, right? So I can write a regular expression which will give me the pattern of the token of the identifier based tokens, ठीक है? तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर मोर देन सफिशिएंट, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लेक्सिकल एनालिसिस फेज को करने के लिए। हम आगे देखेंगे सिंटेक्स एनालिसिस फेज में हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की जरूरत पड़ेगी, यहां पे हमारा काम फाइनाइट ऑटोमेटा से भी चल जाता है, ठीक है? ऑलराइट, सो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमसे पूछा जाए लेक्सिकल एनालाइजर क्या क्या करता है, कमेंट्स को हटा देता है, व्हाइट स्पेसेस को हटा देता है और टोकन्स का मुझे काउंट देता है, लाइन ऑफ रेफरेंस और लाइन ऑफ डिक्लेरेशन को भी हर वेरिएबल की, हर जितने भी आइडेंटिफायर्स आपने डिक्लेयर करे हैं उन सब की लाइन ऑफ रेफरेंस और लाइन ऑफ डिक्लेरेशन को भी अपडेट कर देता है सिंबल टेबल में। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है एक लेक्सिकल एनालाइजर की, और टोकन्स काउंट करने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बस यही देखा है। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द गिवन प्रोग्राम, तो आप कैसे टोकन्स काउंट करेंगे? आपको जितने टोकन्स दिख रहे हैं उनका आप काउंट लिखते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है और इन दिस आई हैव गिवन एज ए नेट बेस्ड क्वेश्चन। कैसे काउंट करेंगे? लेट्स सी। Integer is my first token, main is my second token, third is my open parenthesis, close parenthesis, 5 is my the braces, then 6 is my integer, 7 is A, 8th is comma, 9th is B, 10th is comma again, 11th is C, this is semicolon, 12th, this is 13th, this is 14th, this is 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24, 25, then 26, 27, 28, 29 as well as 30। तो ये इस तरह से आपको टोकन्स को काउंट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को कीवर्ड्स मिल रहे हैं उनको अलग से रखेंगे, आइडेंटिफायर्स जो मिल रहे हैं अलग से रखेंगे, ऑपरेटर्स जो मिल रहे हैं उन्हें अलग से रखेंगे, और इस तरह से आप लोग जो है टोकन्स को काउंट कर सकते हैं। क्या क्या अलग रखना है? हमें आइडेंटिफायर्स अलग से रखने हैं, हमें ऑपरेटर्स अलग से रखने हैं, हमें इवन डेलिमीटर इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑपरेटर इफ आई डू नॉट काउंट इट सेपरेटली, डेलिमीटर्स अलग से रखने हैं, देन हमें कीवर्ड्स अलग से रखने हैं, और इस तरीके से हमें सारे के सारे टोकन्स जो हैं प्रोग्राम में बहुत इजीली मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है जो गेट में मोस्टली पूछा जाता है। आंसर इज 30। नाउ अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लेंगे। काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द गिवन प्रोग्राम। ये दो क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको एक आइडिया देने के लिए कि टोकन्स कैसे काउंट होंगे। आप कोई भी सवाल जो गेट में आता है बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? सो काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द गिवन प्रोग्राम। हमें पता है यहाँ पर पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देन हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो प्रिंटफ है उसके अंदर जो स्ट्रिंग होती है उसे एक टोकन काउंट किया जाएगा। विल सी दैट दिस इज 19, दिस इज 20, दिस एंटायर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद कोड्स इज 1 टोकन। 21, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि जो स्ट्रिंग है प्रिंटफ के अंदर कोलन से कोड से स्टार्ट होकर जब तक कोड एंड नहीं हो जाता है वो सारी की सारी एक ही टोकन काउंट होगा। 21, सो अगेन दिस इज अ कांस्टेंट। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So this is 28, 29 and then 30. 31, 32, 33 and then 34. Till now 34. ठीक है? एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझा कि पूरी स्ट्रिंग को एक टोकन लेंगे हम, ठीक है? 34 हो गया। देन हम आते हैं आगे 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, right? That closed bracket. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Now, again, a very important point. Greater than equals to is one operator. 49. Any assignment operators, right? There are other assignment operators like greater than equals to, less than equals to, you know, the comparison operators, sorry. The greater than equals to, less than equals to is one operator, right? Similarly, the assignment operators plus equal to, minus equal to, multiply equals to, divide equals to, or the left shift equals to, you know, this is the right shift, right? So left shift equals to, this is again, all these are one operators only. This is very important point which you should consider. Okay? Then 50, 51. Now again important point, this ternary operator, one operator, you not count it as twice. 52, this I am not counting. 53, 54 and then 55. तो ये दो important points हैं. अगर हम इस पूरे एग्जाम्पल को देखें तो हमने इससे क्रक्स क्या निकाला, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले कि ये जो टर्नरी ऑपरेटर है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, राइट शिफ्ट इक्वल्स टू, ये सारी की सारी चीजें, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट अगेन, सो ये सारी की सारी चीजें एक मेरा एक ऑपरेटर बनाती हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पे. ऑलराइट, एंड देन this is one operator. This is very important to understand. And more importantly, एक और important point जो यहाँ समझना है कि पूरी string जो है मेरी जो printf के अंदर है वो मेरा एक operator बनती है. ठीक है? Alright. So this is again my answer is 55. So you know, so this is basically the lexical analyzer which we have studied as asked in the GATE exam. इससे ज़्यादा जो है लेक्सिकल एनालिसिस से बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है. बिल्कुल बेसिक से उसके फंक्शनैलिटीज क्या हैं, कैसे हम टोकन्स को काउंट कर सकते हैं, इतना ही बेसिक जो है हमें लेक्सिकल एनालाइजर से पूछा जाता है. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सिंबल टेबल्स के बारे में. राइट, तो सिंबल टेबल्स क्या है? अगेन सो बेसिकली इसमें हम सारे सिंबल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो सिंबल्स हमारे पास में यहाँ पे हमारा मतलब सिंबल से है आइडेंटिफायर्स से. राइट, तो जो भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द आइडेंटिफायर्स एंड इट इज मैनेज्ड बाय द सिंबल टेबल मैनेजर. सिंबल टेबल मैनेजर इसे मैनेज करता है और ये सारे आइडेंटिफायर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर रखती है, जिसके अंदर की जैसे कि फंक्शंस आ गए, वेरिएबल्स आ गए, ऑब्जेक्ट्स आ गए, क्लासेस आ गया, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएंगी. अब सिंबल टेबल दिखता कैसा है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं. कैसा दिखता है सिंबल टेबल के अंदर? हम अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक वेरिएबल है जो कि मेरे पास लेट्स से इंटीजर a है और लेट्स से आई एम असाइनिंग द वैल्यू 20 टू इट. तो सिंबल टेबल मैनेजर में क्या एंट्रीज रहेंगी? तो सिंबल टेबल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सिंबल टेबल में क्या क्या एंट्रीज रहेंगी? तो सबसे पहले नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज a, देन द टाइप ऑफ द वेरिएबल विच इज int, व्हाट इज द साइज ऑफ द वेरिएबल, लेट्स से इट इज 4 बाइट्स based upon the size of the integer on a specific machine and a specific compiler. It is all compiler and hardware dependent, so we are not worried about the size right now, the exact size right now. Then dimensions, मतलब कि हो सकता है ये array हो, 1D array हो, 2D array हो, कैसा भी हो सकता है single element हो. इस केस में तो dimension is it's a scalar quantity. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर multiple चीजें, dimensions नहीं है इसके, right? Then उसके बाद neither it is a 1D array or a 2D array, it's a zero dimensional thing. Then उसके बाद हमारे पास आता है line of declaration, कि किस लाइन पे इसे डिक्लेयर किया गया. Let's say line, this is line number 1, this is line number 2. ठीक है, so line of declaration is basically this is line number 1. ठीक है, देन लाइन ऑफ यूसेज, कहां पे इस वेरिएबल का यूज किया जा रहा है. यूज से मेरा मतलब क्या है? जहां पे इसकी वैल्यू को यूज किया जा रहा है वो सारे के सारे वैल्यूज हम यहां रख सकते हैं. सो ऑल द लाइन नंबर्स विल कम ओवर हियर. राइट, सो डू यू रियलाइज दैट ए वेरिएबल विल बी यूज्ड इन मल्टीपल लाइंस. बहुत सारी लाइंस में उसका यूज किया जाएगा. जैसे कि हो सकता है लाइन नंबर 6, 7, 8, 9 हर जगह यूज हो रहा है, तो इसको कैसे स्टोर करेंगे? यहां पे तो स्पेस लिमिटेड है, तो इट्स बेटर टू यूज लिंक लिस्ट फॉर दिस. लेट्स से इस लाइन नंबर 6 में यूज हो रहा है, देन 10 में यूज हो रहा है, देन 14 में यूज हो रहा है, देन 20 में यूज हो रहा है. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, फिर बात आती है मेमोरी एड्रेस, कि मेमोरी में इसको क्या एड्रेस दिया गया है वेरिएबल को. दैट एड्रेस विल बी पॉपुलेटेड हियर एंड इट्स वैल्यू करंटली द वैल्यू इज 20, दैट इज अपडेटेड हियर. एंड देन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप लोकल है, ग्लोबल है, किस जगह पे इसका स्कोप है, वो सारी की सारी चीजें हम स्कोप के अंदर यहां पर स्टोर कर सकते हैं. सो लेट्स से इट इज लोकल राइट नाउ, वी स्टोर द स्कोप which is local in this case here. ठीक है, तो ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए. अब सिंबल टेबल के लिए मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं, कैसे उसे स्टोर करूं? तो देखिए सिंबल टेबल के अंदर बहुत सारे एंटिटीज होंगी,
बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होंगे, हर आइडेंटिफायर की इसमें डिटेल्स होंगी, तो एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। मैं एक फिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले सकता, और मल्टीपल प्रपोजल्स हैं, हम मल्टीपल डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। किसी का कुछ एडवांटेज है, किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रो है तो उसके लिए किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का उसके लिए वो शायद कौन बन जाए, राइट। तो अगर हो सकता है एक डेटा स्ट्रक्चर में कुछ एडवांटेज है और वो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर में कुछ और एडवांटेज है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगेन जस्ट टू टेल कि विच इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल ऑलवेज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। जो आप जिस सिनेरियो में उसे यूज कर रहे हैं इस चीज पे ये चीज डिपेंड करेगी। ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है, right? It depends upon the scenario, what kind of programs you are having, what kind of scenarios you are having, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन इतना क्लियर है कि डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक चाहिए, बिकॉज यू नो मल्टीपल आइडेंटिफायर्स विल कम इनटू दिस टेबल, राइट। तो क्या क्या है इस टेबल के अंदर, हमने देखा उसका नाम, वेरिएबल का नाम, उसका टाइप, उसका साइज, उसकी डायमेंशन, उसका लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ यूसेज, मे बी यू नो लाइन ऑफ असाइनमेंट भी हम लिख सकते हैं। जैसे 1:20 यहां पर इसको असाइनमेंट हो रहा है तो लाइन ऑफ असाइनमेंट भी लिखा जा सकता है, मेमोरी एड्रेस लिखना है, वैल्यू लिखना है, और उसका स्कोप क्या है ये भी हम अपडेट कर देंगे कि कहां है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ही फील्ड्स हैं, there can be more fields also. These are the generic fields that we have discussed. Nobody will ask you specific thing कि C compiler में कौन कौन के सिंबल टेबल में कौन कौन से फील्ड्स रहते हैं सिंबल टेबल के अंदर, या जावा के अंदर कौन कौन से सिंबल टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स रहते हैं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। ये जेनरिक फील्ड्स हैं जो हमने डिस्कस की, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ऑलराइट। अब मेजर बात क्या आती है कि इसके लिए कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करें। उससे पहले हमें थोड़ा सा एक बात समझनी चाहिए कि ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं एक सिंपल साधारण भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ब्लॉक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जिसके अंदर ब्लॉक्स का फीचर है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ब्लॉक्स हम बना सकते हैं, हर फंक्शन का एक अलग से ब्लॉक बना सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 है, देन फंक्शन 2 है, देन फंक्शन 3 है, और इनफैक्ट फंक्शन 3 हो सकता है, फंक्शन 3 है, और इनफैक्ट ऐसा ही नहीं कि हम विद इन अ फंक्शन भी मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें वहां पे कोई ब्लॉक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम सिंबल टेबल पे कर सकते हैं। देखते हैं फटाफट से। देखिए ब्लॉक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मल्टीपल ब्लॉक्स आर अलाउड, मल्टीपल ब्लॉक्स हम अलाउ करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अलाउड है, ठीक है। और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में ओनली वन ब्लॉक इज अलाउड, एक ही ब्लॉक अलाउड है, सारा प्रोग्राम एक ही ब्लॉक में आता है, ठीक है। A variable can be declared multiple times in the block structured language, right? So for example, you can have an A here, 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 you can have an A here. So multiple declarations are allowed. Here a variable can be declared only once. ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात आती है स्कोप की। अगर हम स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करें, ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्कोप होगा वो लिमिटेड टू द ब्लॉक होगा। ये वाला जो A है मेरा, ये वाला जो मेरा A है वो यही यूज हो सकता है, ये वाला जो A है यहां पर यूज होगा, इसका स्कोप ये है। अगेन इस ए का स्कोप ये है और इस ए का स्कोप ये है। अगेन तो इस एरिया में कौन से वाला ए यूज होगा, अगेन आउटर स्कोप ये है। अगर यहां पर इनसाइड दिस ब्लॉक दिस ए विल टेक ओवर, तो इस एरिया में इसी ए का स्कोप यूज होगा, ठीक है, टेक ओवर कर लेगा वो ऊपर वाले ए से, ठीक है। सिमिलरली इस एरिया में अलग से हम एक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक। तो ये इस ब्लॉक में, ये इस वाले ब्लॉक में, इसकी बात करें तो इस ब्लॉक में, इसकी बात करें इस ब्लॉक में, इसकी बात करें इस ब्लॉक में। तो क्या है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक। हियर द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में एक ही ए होगा और उसका स्कोप होगा पूरा प्रोग्राम, राइट। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी ऑलरेडी नो, राइट। हमने देखा ही है सी का सिंटेक्स, वी ऑलरेडी हैव ब्लॉक्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, क्यूबेसिक है, पास्कल है, ये सभी के सभी क्या है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस हैं। नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में हमारे पास असेंबली कोड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोबोल और फोर्ट्रैन, दीज आर ओल्ड लैंग्वेजेस व्हिच आर नो लॉन्गर यूज्ड हेवीली, बट अगेन दीज वर द नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। करंटली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं मोस्टली ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस ही हैं हमारे पास में, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेजेस जो रहेंगी
जो बिल्कुल हार्डवेयर के अंदर है, सो बिल्कुल जो हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेजेस जो मेरी रहेंगी वो जो है बेसिकली असेंबली कोड ही होगा, वो बेसिकली नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड होगी। जैसे असेंबली कोड जो है दैट इज हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो वो जो है हमारा हमेशा नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑन द सिंबल टेबल। नाउ ऑपरेशंस, अब बात करें तो हमने सबसे पहले ऑपरेशंस को समझने के लिए हमने क्या समझा कि ब्लॉक स्ट्रक्चर और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस अलग होंगे। पहले तो हमने ब्लॉक स्ट्रक्चर और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझा। अब अगर आप समझें तो ब्लॉक स्ट्रक्चर और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में अगर सिंबल टेबल की बात करूं मैं, तो इंसर्शन और लुकअप तो दोनों के अंदर ही होगा। इंसर्शन और लुकअप से मेरा मतलब क्या है, हम सिंबल टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट भी करेंगे और फिर उनको ढूंढेंगे भी, और अपडेशन भी दोनों के अंदर ही होगा। अपडेशन भी ब्लॉक स्ट्रक्चर में होगा और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में भी वैल्यूज तो अपडेट होंगी, सिंबल टेबल तो अपडेट होगा ही मेरे। तो या तो एक तो इंसर्ट करूंगा, एक लुकअप करूंगा, एक अपडेट करूंगा, इवन डिलीशन भी करना हो सकता है। ठीक है, बट मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेट एंड रीसेट ऑपरेशंस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, दे आर नॉट देयर इन द नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मतलब सेट और रीसेट से क्या मतलब है कि स्कोप को सेट और रीसेट करना ये ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में होगा, नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में नहीं होगा। स्कोप को रीसेट, सेट और रीसेट करने से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं इस ब्लॉक पे था, पीछे वाले वेरिएबल की बात करूं तो इस एरिया में ये वाला ए यूज होगा, तो जैसे ही मैं इस एरिया में एंटर करूंगा तो पुराने वाला जो है तो पुराने वाला जो स्कोप है वो चेंज हो जाएगा। अब ए का स्कोप ये वाला हो जाएगा। सो इस एरिया में एंटर करते ही, व्हेन आई एंटर इनटू दिस एरिया आई विल सेट द स्कोप, when I am exiting this area I will say reset, right, I will change the scope. When I come to this area again I will reset my scope. ठीक है, तो स्कोप को बार बार आपको सेट और रीसेट करना होगा। और इनफैक्ट आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको और अच्छे से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसा बोलें कि इनिशियली आपने सेट किया, फिर रीसेट करके उसको अगेन नल कर दिया, और यहां पे जैसे ही एंटर करेंगे फिर से रीसेट कर देंगे आप। यहां से निकलते हुए फिर से रीसेट किया, और उसके बाद जैसे ही आप यहां पे नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर कर जाते हैं फिर से आप इसको सेट कर देंगे। रीसेट से मतलब आपने नल कर दिया सारी चीजों को, सेट से आपने दोबारा से सेट कर दिया। व्हेन यू आर एग्जिटिंग अ ब्लॉक यू विल रीसेट, व्हेन यू आर एंटरिंग द न्यू ब्लॉक यू विल सेट। तो ये स्कोप से रिलेटेड चीजें जो है नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में नहीं होंगी, ब्लॉक स्ट्रक्चर में ही होगी। मुझे बस ये एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना था यहां पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो ब्लॉक से रिलेटेड चीजें हैं वो यहां ही होंगी, वहां पर वो ब्लॉक से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी। सिंपल है, मतलब स्कोप से रिलेटेड चीजें नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर में नहीं होंगी और ब्लॉक स्ट्रक्चर में मेरी होंगी। तो मेजर ऑपरेशंस अगर हम देखा जाए तो जो दो मेजर ऑपरेशंस है वो इंसर्शन और लुकअप है। और हमें बेसिकली अब क्या डिस्कस करना है कि इन ऑपरेशंस का डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम सिंबल टेबल के लिए यूज कर सकते हैं, इनमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेसिकली वही डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो सिंबल टेबल के लिए यूज कर सकते हैं हम। So the operations which we are discussing are insertion and lookup, and what are the various data structures that you can discuss? That is the order array and unordered array, ordered list and unordered list, self-organizing list and search tree, and as well as the hash table. तो ये सारे के सारे आप डेटा स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हो सिंबल टेबल के लिए। अब मुझे देखना है कि किस हर केस में इंसर्शन की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और लुकअप टाइप की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड आई विल अपडेट दिस टेबल। गेट में सिंबल टेबल से रिलेटेड सवाल अगर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आया है तो इन डेटा स्ट्रक्चर से बाहर कभी भी आज तक तो नहीं आया। अगर हम ये सारा डिस्कस कर लेते हैं तो आप कोई ये तो सारे सवाल कर ही पाएंगे, लेकिन इसके जो आइडिया से हमने जितना भी डिस्कस किया, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर भी वो दे देता है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अगर इन्हीं सातों में से आता है तो भी आप कर पाएंगे, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप नया कोई डेटा स्ट्रक्चर आता है तो भी बहुत इजीली इस तरह के सवालों को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले ऑर्डर्ड एरे की। अगर मेरा एरे ऑर्डर्ड है तो इंसर्शन करने में कितना टाइम लगेगा? O of n मान लेते हैं हमारा सिंबल टेबल का साइज है। लेकिन लुकअप करना है तो ऑर्डर्ड एरे के अंदर मैं बाइनरी सर्च कर सकता हूं, तो मेरा लुकअप टाइम हो जाएगा O of log of n। सो बाइनरी सर्च इज फिजिबल है। लेकिन अगर मेरा एरे अनऑर्डर्ड हो जाता है तो मेरा इंसर्शन टाइम तो O1 हो जाएगा, आई विल इंसर्ट इट इनटू द लास्ट। ठीक है, बट मेरा लुकअप टाइम कितना हो जाएगा? O of n, बिकॉज बाइनरी सर्च इज इनफिजिबल। बाइनरी सर्च यहां पर पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक बात है, सिंपल है। ठीक है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज चाहिए हमें। ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें कि अगर मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड है
लिस्ट मैंने लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट ऑर्डर्ड है तो अगेन इंसर्शन में O ऑफ n टाइम जाएगा। और अगर मेरा लुकअप टाइम की बात करूं, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट भी है तो मैं बाइनरी सर्च नहीं कर सकता, लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च नहीं लगता। मैं कैसे जंप करूंगा, पहले मैं 0 to n है और n क्या होती है बाइनरी सर्च जनरली, अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की सो ये मेरा एंड है, ये मेरा बिगनिंग है, ये मेरा बिगनिंग है, ये मेरा एंड है। आई विल फाइंड आउट द मिडल, राइट। अगर मिडल मेरे एलिमेंट से छोटा है, अगर मेरा मिडल जो है मेरे एलिमेंट से छोटा है तो आई विल सर्च इन दिस पार्ट। अगर मेरे मिडल मेरे एलिमेंट से बड़ा है तो आई विल सर्च इन दिस पार्ट। और मिडल अगर एलिमेंट के बराबर है तो क्या करूंगा, वही एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, वही लोकेशन को रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह से मिडल पे डायरेक्टली आ पाना, जंप कर पाना लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। You cannot directly access a location into a linked list. You have to traverse all the locations and then only you can go to a location in a linked list. ठीक है? All right. So random access is not possible in a linked list. Random access or a direct access is not possible in a linked list. You have to do, you have to access locations one by one. ठीक है? अब बात करें अगर हम इंसर्शन टाइम की तो O of n है। लुकअप टाइम की बात करेंगे तो आप यहां पर लुकअप टाइम जो होता है एक ऑर्डर्ड लिस्ट का, तो आप लुकअप टाइम की भी हम बात कर रहे थे। देखो अगर इंसर्शन की बात करेंगे, इंसर्शन तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट है तो O of n ही लगेगा, आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन लुकअप टाइम का जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, लुकअप के अंदर भी O of n टाइम ही लगेगा। बाइनरी सर्च इज नॉट पॉसिबल अगेन। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लुकअप टाइम O of n रहेगा क्योंकि बाइनरी सर्च फिजिबल नहीं है। और अगर बात करूं इंसर्शन टाइम की, O of n लगेगा क्योंकि आपको हर बार ऑर्डर करना है उस चीज को। ये हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करूं तो अब इंसर्शन मेरा ठीक हो जाएगा। इंसर्शन में बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में कर दूंगा, हेड के पास, हेड से पहले नया हेड बना दूंगा तो O of 1 हो जाएगा। लेकिन अगेन सर्चिंग तो मेरी O of n ही रहेगी। अगेन मैं ये बोलूंगा बाइनरी सर्च इज इनफिजिबल। इनफैक्ट आप लोग को ये भी देख के समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा मेजर ऑपरेशन जो है, मतलब इन जनरल लुकअप टाइम ही रहेगा। मतलब बार बार आपको सिंबल टेबल को सर्च करके उन वेरिएबल्स को देखना होगा। लुकअप टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द सिंबल टेबल इज कंसर्न। ऑल्दो इंसर्शंस विल आल्सो बी वेरी कॉमन, बट मोर कॉमन ऑपरेशन विल बी लुकअप टाइम। इफ दैट इज द केस, यू शुड चूज द डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन द लुकअप टाइम। जैसे मैं बोल रहा था कि एक फीचर एक किसी डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज हो सकता है तो दूसरे का डिसएडवांटेज होगा। जैसे कि मैं यहां पे आप देखिए, इंसर्शन टाइम यहां पे अच्छा है, इंसर्शन टाइम इसका अच्छा है अनऑर्डर्ड एरे का, लेकिन लुकअप टाइम खराब हो जाता है। इंसर्शन टाइम ऑर्डर्ड एरे का खराब है लेकिन लुकअप टाइम इंप्रूव हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम में इंसर्शन, मतलब सिंबल टेबल के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन ज्यादा होता है आपके सिनेरियो में, या लुकअप, मतलब आपको वेरिएबल को सर्च करना है वो वाली चीज ज्यादा होती है। दिस विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर सिनेरियो। वी कैन नॉट से कि ऐसा ही होगा और ऐसा, मतलब एक ही डेटा स्ट्रक्चर को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वह हमेशा यही सही रहेगा। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं बोल सकते हम बिल्कुल भी। हाँ, इन जनरल लुकअप टाइम जो है वो ज्यादा रहता है प्रोग्राम्स में। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट क्या होती है? जो खुद से खुद को ऑर्गेनाइज करे, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या करते हैं उसमें, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस चीजें हैं उनको वो, मतलब जो है वो लिस्ट के अंदर आगे ले आता है जिससे कि सर्चिंग इजी हो जाए। लिस्ट क्या है? लीनियर लिंक लिस्ट ही है। वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, जो एलिमेंट ज्यादा जल्दी सर्च हो रहे हैं उन्हें आगे ले आएंगे हम। ठीक है, हेड के पास ले आएंगे। तो अगेन इंसर्शन तो मेरा O of 1 ही रहेगा। अगेन लुकअप टाइम विल इंप्रूव, बट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी मेरी O of n ही रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेस एज पर द सर्च, एज पर सर्च ट्रेंड्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं सर्च ट्री की। सर्च ट्री क्या होता है? सर्च ट्री क्या है? सर्च ट्री क्या हो गया हमारे पास में कि भैया अगर हम एक, अगेन कोई भी सर्च ट्री यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, टर्नरी सर्च ट्री, एनरी सर्च ट्री, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इंसर्शन तो हमेशा किसके बराबर होता है? जितनी हाइट है, आई एम अज्यूमिंग kre, और लुकअप टाइम भी उतना ही होगा जितनी हाइट है, log of kn, log of n to the base k. So again this is for kre tree. और अगर हम हैशिंग की बात करें तो हमेशा इंसर्शन भी हमारा O of 1 हो जाएगा और हमारा सर्चिंग भी O of 1 हो जाएगा। लुकअप टाइम भी हमेशा O of 1 रहेगा, लेकिन अगेन बिवेयर फ्रॉम द कॉलिजन्स।
कॉलिजन्स है तो आपको कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेसिकली डिस्कस किया कि क्या क्या ऑपरेशंस हम सिंबल टेबल पे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, इट कैन नॉट बी आंसर, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर सिनेरियो. But if lookup time is the basic criteria, then hash table wins. But again, it again suffers from collisions. So again, you have to see how much collisions happens in your scenario. You have to check. ठीक है, ऐसा बहुत क्लियरली बोल पाना मुश्किल है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, आप गेट में सवाल देख लेते हैं, इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता. एक्सेस टाइम ऑफ द सिंबल टेबल विल बी लॉगरिथमिक इफ इट इज इंप्लीमेंटेड बाय, किससे करेंगे, लॉगरिथमिक लाना है तो लीनियर लिस्ट से तो नहीं आएगा, OFN रहेगा. सर्च ट्री से क्या रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया, इसमें लॉगरिथमिक रहेगा अगर के मेरा केरी ट्री है तो. हैश टेबल में O1 रहेगा, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया बी, दैट इज सर्च ट्री. ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टोकन्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोग्राम. ठीक है, ठीक है. तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. सो हमने क्या क्या देखा है इस लेक्चर में, हमने देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर की क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या चीजें वो करता है, कैसे लेक्सिकल एनालाइजर जो है थ्रू द फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया जा सकता है, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम पैटर्न्स को लिख सकते हैं जिससे वो आइडेंटिफायर्स को फाइंड आउट कर सकता है. राइट, देन वी सॉ कि भाई सिंबल टेबल्स क्या हैं. सिंबल हमने इससे पहले हमने ये भी देखा कि कैसे टोकन्स को हम काउंट करते हैं, हाउ टू डू द काउंटिंग ऑफ द टोकन्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज गेट एग्जाम इज कंसर्न. देन हमने देखा कि सिंबल टेबल मैनेजर क्या करता है, सिंबल टेबल को मैनेज करता है, सिंबल टेबल कैसा दिखता है हमने देखा, और सिंबल टेबल के अंदर कैसे हमने ऑपरेशंस करने हैं, कैसे कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो सकते हैं वो हमने देखा. और हमने देखा कि मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, द वन विच इज बेस्ट एज पर योर सिनेरियो शुड बी यूज्ड. राइट, अगर थ्योरी की बात करें तो इतना ही है एज फार एज लेक्सिकल एनालाइजर एंड सिंबल टेबल मैनेजर इज कंसर्न. अगेन rest is all about practice. You can post your doubts in the chat box, in the chat on the YouTube channel of the various videos, or you can also post on the Telegram group. Your doubts you can be also be posted on the Telegram group. All right, so that's all about this session, guys. I'll see you guys in the next session with some details on grammars. We'll start with the next phase, which is known as the syntax analysis phase. Right, so that's all. Yeah, so thank you so much, guys. I'll see you guys in the next session.